Hello students, so let us see this chapter Evans tries an O level. It's written by Norman Colin Dexter. I told you earlier also. He was born on 29 September 1930. Okay, just remember the name and date of birth. It can be asked. So he was famously an English crime writer known for his Inspector Moore series of novels. Okay, and I also told you about his prizes and his appointment as a okay. So let us see. The story Evans tries an O level is all about a cunning prisoner Evans who makes a plan to escape from the prison on the day of his German language O level exam. And this same prisoner has escaped the jail uh, 2 to 3 times earlier also, and he was famously called as uh, Evans the Break. Okay, the jail authorities was so much tensed and they wanted to ensure everything. They don't want to take any risk because they don't want to let him escape once again. They are ready to cover up any sort of risk. Will he be able to succeed in his escape or not? So this story is mainly about this. So, the story starts with a telephonic conversation between the governor and the examination board secretary. Okay, the prison authorities want to conduct an O-level exam in the German language for a prisoner named Evans. So यहाँ पे ये जो Evans है ये हमारा prisoner है. He is in the jail and he has escaped the jail earlier 3 times. Okay, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड इवान्स द ब्रेक बिकॉज ऑफ दिस. ये जो इवान है इसने पहले 3 बार जेल तोड़ के ही भाग चुका है, इसलिए इसको इवान्स द ब्रेक भी बुलाया जाता है. अब ये जो जेल अथॉरिटीज़ हैं दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस बार इवान्स जो है उनके हाथों से निकल जाए. बट दे कांट स्नैच और दे कांट मतलब टेक दैट चांस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम दैट प्रिजनर. वो उसका एजुकेशन का राइट नहीं छीन सकते. दैट्स वाई दे आर अलाउइंग हिम टू गिव दैट एग्जाम. सो नाउ O level exam in the journal language for a prisoner named Evans. The secretary asks about the venue of the exam and also about the invigilator for it. अब जो जेल का सेक्रेटरी है वो पूछता है कि ये एग्ज़ाम कहाँ पर होगा और इसका इन्विजिलेटर कौन होगा. द गवर्नर रिप्लाइज दैट द एग्ज़ाम कैन बी कंडक्टेड इन इवान सेल. अब जो जेल का गवर्नर है वो रिप्लाई करता है कि ये एग्ज़ाम इवान की सेल यानी कि उसके जेल के कैबिन में ही कंडक्ट किया जा सकता है. एंड अ चर्चमैन विल बी अपॉइंटेड. चर्चमैन मीन्स प्रीस्ट. ठीक है ना, पंडित जो है जो क्या बोलते हैं इनको, क्रिश्चियंस के जो होते हैं चर्चेज़ में जो होते हैं, जैसे हम पुजारी को पंडित बोलते हैं ऐसे ही वो लोग उनके जो होते हैं पार्सन जिनको कहते हैं, दे आर गोइंग टू इन्विजिलेट द एग्ज़ाम. The governor replies that they both then end their conversation by deciding on how and when the exam will be conducted. So everything has been decided. The governor and the secretary of the examination department, they adjusted everything. A senior prison officer Jackson visits Ivan's cell to conduct an inspection so that any weapon may be hidden. अब before the exam एक senior prison officer है जैक्सन जिसका नेम है, वो इवान की सेल को विज़िट करता है ताकि वो देख ले कि उसमें कोई ऐसा वेपन ना छुपा हो जिससे कि वो इन्विजिलेटर को हार्म पहुंचाए, भागने में कुछ भी इजी हो. They are going through this checking because Evans had successfully escaped from prison earlier also. I told you as the episode gave him the name of Evans the Break. That was all I also told you. The governor was not ready to take any risk with this as it could bring a bad name to him. एंड गवर्नर अपने नेम पे कोई चांस नहीं लेना चाहता. ही डोंट वांट टू कंडक्ट टेक एनी काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट्स फॉर हिम और नेगेटिव फेम फॉर हिम. दैट्स व्हाई ही डजंट वांट टू टेक एनी चांस. जैक्सन एंड स्टीफन चेक द सेल थॉरोली. अब जैक्सन और स्टीफन भी एक जेल ऑफिसर है, उसने बहुत अच्छे से सेल को चेक किया. दे हैड टेकन अवे हिज नेल सीजर्स अर्लियर एंड जैक्सन्स ऑर्डर स्टीफन टू टेक अवे हिज रेजर ब्लेड एज सुन एज ही हैड शेव्ड. उन्होंने उसका नेल सीजर यानी कि नेल कटर भी ले लिया और उसके रेज़र को भी लेने के लिए कह दिया. जैसे ही वो शेव करता है उसका रेज़र भी उससे ले लिया जाए. मीन्स ही मस्ट नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वेपन. आई एम नॉट सेइंग वेपन, एनी काइंड ऑफ आर्टिकल विच कुड हेल्प हिम टू एस्केप फ्रॉम देयर.
Now Jackson ordered Evans to take off his hat but left it because Evans requested him not to do so as it was his lucky hat for the exam. अब this was the mistake of Jackson. Jackson ने इवान को कहा कि you should take off your hat. एक काफ़ी बल्कि सा हैट पहना हुआ है इवान्स ने. ओके जैक्सन उसको कहता है कि इसको उतार दो, बट इवान उसको रिक्वेस्ट करता है, इट्स माई लकी हैट एंड दिस इज़ माई एग्जाम, सो लेट मी हैव इट ड्यूरिंग द एग्जाम. So all sorts of arrangements were made to keep a check on Evans. Even a microphone was placed in his cell on the day of exam. McLeary, the churchman, reached the prison and was assisted to the cell by Stephens. The governor was informed that the exam was about to begin and that the cell did not have any weapons. The governor ordered the officer to check the churchman so that Evans may not use any belongings of McLeary as a weapon. यानी कि जो इन्विजिलेटर आया था, पार्सन जो आया था चर्चमैन, उसको भी अच्छे से चेक किया गया ताकि मैकलेरी, जिसका नाम मैकलेरी उस इन्विजिलेटर का नेम है, और ताकि वो उसके पास कुछ भी ऐसा ना हो जिसको कि इवांस एज ए वेपन यूज़ कर सके. The churchman and his belongings were searched. The paper knife was also removed so that Evans might not use it to injure the churchman in order to escape. पेपर नाइफ जो होता है पेपर का बंडल खोलने के लिए, वो भी उससे ले लिया गया ताकि इवान उसको यूज़ ना कर सके. ड्यूरिंग द सर्च जैक्सन फाउंड वन एबनॉर्मल थिंग इन द चर्चमैन्स बैग. अब सर्च के टाइम पे जैक्सन जो कि एक जेल ऑफिसर है, उसको मैकलेरी के बैग से एक एबनॉर्मल सी चीज़ मिलती है. व्हाट वाज इट? इट वॉज अ सेमी फिल्ड ट्यूब. उसको एक गोल्ड रिंग मिलती है, सेमी फिल्ड, जो कि हाफ भरी हुई है, मीन्स वो बल्कि है, वी कैन प्रेस इट. ठीक है, जैसे कोई भी पंक्चर वाला ट्यूब होता है उसको, उसकी तरह. व्हेन आस्क्ड द रीज़न फॉर कीपिंग इट, मैकलेरी सेड दैट ही हैड टू यूज़ इट एज ही सफर्ड फ्रॉम पाइल्स. और जब उसे रीज़न पूछा गया कि वो इसका क्या करता है, तो उसने कहा कि मुझे क्योंकि पाइल्स की प्रॉब्लम है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ बैठने के लिए, फॉर माई कम्फर्ट. The exam began and everything being spoken in the cell was constantly heard by the governor. एग्ज़ाम शुरू होता है और जैसे कि हमें पता है कि फ़ोन इंस्टॉल करवाया गया था सेल में, तो जो कुछ भी मैकलेरी और इवांस के बीच में बातें होती हैं वो सारी की सारी गवर्नर बहुत क्लियरली सुन रहे थे. Meanwhile, a phone call from the examination board for some corrections in the question paper made the governor suspicious. बीच में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से एक कॉल आता है जिससे गवर्नर को थोड़ा सा शक होता है. ही क्रॉस चेक्ड इट बाय डायलिंग द नंबर अगेन विच टर्न आउट टू बी बिजी. वो क्रॉस चेक करने के लिए क्या करता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जिस यहाँ से कॉल आया था उस नंबर को रीडायल करता है, लेकिन उस टाइम पर वो नंबर बिजी जाता है. देन अगेन देयर वॉज अ फोन कॉल फ्रॉम द मजिस्ट्रेट डिमांडिंग फॉर पुलिस ऑफिसर्स एंड अ वैन. फिर एक दोबारा से कॉल आता है जिसमें डिमांड की जाती है कि मजिस्ट्रेट के लिए थोड़े से पुलिस कर्मचारी चाहिए और एक वैन चाहिए. Such things were suspicious to the governor, but he calmed down as he was sure of his arrangements. इस तरह की चीज़ों से गवर्नर को शक होता है, बट वो थोड़ा सा शांत हो जाता है कि उसने सब कुछ बहुत ज़्यादा इंश्योर किया है, वो उसको अपने अरेंजमेंट्स पर बहुत पुख्ता इंतजामों पर बहुत ज़्यादा भरोसा था. Stephens stood outside the cell and peeped inside after every minute. It was always the same, but later on he noticed that Evans had put a blanket around himself. So Stephen and Jackson, they were watching everything. Every second they were watching everything. They were peeping in the cell sorry, through the keyhole. So